Hi guys, welcome back. Last class we had discussed what is the accounting concept meaning, what it means, and even we discussed the meaning of accounting principle and convention, how these three are different. Accounting concept, if I say once again, accounting concept are your basic assumptions and condition which has to be followed by the management for preparing their books of accounts or maintaining their books of account. And when it comes to accounting principle, wherever we have alternative options to do, methods or it is according principle are acting as a guidance or the doctrine. Doctrine means rules. They are acting as a rules guidance for selection of one of the alternative. And the convention means over a period of time when we follow one accounting principle consistently, it become a part of our accounting practice. Entity's accounting practice, and it called as accounting convention for that entity. Clear? So now we can move further by discussing one by one accounting concepts, which are actually very much important for upcoming classes. Okay. So when you see from our material, I will let you run you through from material. Yeah. When you see from our material, after the meaning of these four words, we will start these all the concept, principles, and convention. We have when we see the unit overview, you have this near to, I guess, 13 to 12 all the things to discuss there, but I will go one by one in my sequence of order. I will be covering all the concept, but I want your good attention on this concept because it's very important, because wherever you have silly doubts into accounting, this concept will have actually logic to do the things what we are doing from our intermediate or CA or at final. We will have basic doubts at that level by thinking why we are adding this, why we are doing so, why we are presenting so. We just go with the flow and make the things happen, but actual reasoning are these concepts. Okay, we'll start one by one concept, and we can discuss in elaborately all the concept with all the possible examples there. I will be making sure you are very much aware of each and every concept by end of this class. So our first concept will be business entity concept. Give me a minute. Yeah, it will be business entity concept. So remember our starting lecture, what was business? It is something where individual is being busy with doing some regular activity, and then we started saying that idiot has that person he's doing to so and so business, correct, with some objective of earning profit and all. Now what is business entity concept? What this concept says, see, if you see the flow now, I'm just showing you owner, and this is the business. Yeah, owner and the business. When you see the relation between owner and business, what is the relation between these two idiots? Yeah, what is the relation between this owner and the business? If I skip the relation now, owner is investing into the business, correct? Owner is investing into the business. He is investing. What he's doing? He is investing. Owner is investing into the business, correct? Now what business is doing? Business is giving the returns. Business is giving the returns. Owner is investing, and I must say investing and managing. Understanding?
Owner is also is actually who? Owner is who? Part of management. Owner is part of management of the business. See, in sole proprietor or partnership or the HUF, they are the owner, they are only into the part of management. When it comes to company, we have owners or whole shareholders. Management is another someone called directors. It's okay, but they are managing the now, as of now we are discussing all the owners who are managing to the business. Okay, so they are managing the business, and how they manage, based on that business is getting the returns. करेक्ट. अगर तुम अच्छा मैनेज करो प्रॉफिट देता, अगर तुम गंदा मैनेज करो लॉस देता. तो बिजनेस कुछ नहीं कर रहा. बिजनेस लाइक business actually what is no, what it says is business is coming because owner has invested. करेक्ट. ओनर ही पैसा दिया, ओनर इन्वेस्ट करा, बिजनेस का जन्म हुआ. आई कैन से इन दैट वे. तो बिजनेस वाज नथिंग, बिजनेस केम बिकॉज ओनर पैसा लगाया. उसके बाद बिजनेस कुछ नहीं कर रहा. फिर भी आफ्टर गेटिंग इनटू एग्जिस्टेंस आल्सो ओनर जैसा चलाया, जैसा मैनेज करा, उसके हिसाब से रिटर्न दे रहा ओनर को. अगर अच्छा मैनेज करा टेक प्रॉफिट, गंदा मैनेज करा टेक लॉसेस. सो बिजनेस इज डूइंग नथिंग. हाँ भाई, आई गॉट माई बर्थ बिकॉज ऑफ यू, वेरी गुड, आई एम थैंकफुल फॉर यू दैट. अब तो जैसा मेरे को मैनेज करता वैसा तेरे को फल मिलता. क्लियर है, राइट? मैनेजिंग वेल गेट द प्रॉफिट, मैनेजिंग बैड टेक द लॉस. बट व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज सिमिलर. यही कहना चाह रहा कि इवन दो ओनर एंड बिजनेस का बहुत गहरा रिलेशन है, बिकॉज ओनर ही बिजनेस को जन्म दिया. इट डजंट, एंड बिजनेस इज उसके एक्टिविटीज, बिजनेस कर रहा कुछ, बिजनेस इज डूइंग इट्स डे टू डे एक्टिविटीज. करेक्ट. दिस डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस सो should be accounted in the books of business. Obviously day to day activities of the business should be accounted for the business. When it come to owner, owner will also do some activities. Correct. But do you think all owner activities are business activities? No, right? So business unity concept says we are doing accounting. Accounting for whom? Owner. Accounting for business. We are doing accounting for business. We are doing accounting for what? We are doing accounting for business. Accounting is done for the business. I am making you clear. Accounting is not done for the owner. Accounting is done for the business. ठीक है, सब ओनर कर रहा, पैसा सब दे रहा, इट्स फाइन, बट अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस. सो बिजनेस के ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में आना, ओनर के ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में आना नहीं आना. तो दिस कॉन्सेप्ट सेज इवन दो ओनर हैज गिवन बर्थ टू द बिजनेस एंड देयर इज रिलेशन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस एंड व्हाट हाउ वेल द ओनर मैनेज द बिजनेस, दैट द रिटर्न व्हाट ओनर विल गेट, दैट्स फाइन. बट ओनर पर्सनल ट्रांजैक्शंस, आई एम एम्फसाइजिंग माय वर्ड, पे अटेंशन. ओनर पर्सनल ट्रांजैक्शन, ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस should not come into the books of accounts of business. ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के एक्ट में नहीं आना. should not come, should not be the business activities, should not be recorded into the business books of accounts. बिजनेस के बुक्स में नहीं आना. क्लियर है? दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली वांट यू टू गिव क्लैरिटी इट बाय सेइंग owner transaction should be treated separately from the business transaction. If owner और business transacting, चलो इन दोनों में ट्रांजैक्शन है, वेरी नाइस भैया, बिजनेस की एक्टिविटी है बट ओनर के साथ ही है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड. बिजनेस की एक्टिविटी है दूसरे के साथ है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड. ओनर की एक्टिविटी है बिजनेस के साथ है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड. ओनर की एक्टिविटी है दूसरों के साथ है, ओनर का वो, वी आर नॉट, टू बी फ्रैंक, वी आर अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, नॉट अकाउंटेंट फॉर ओनर. तो ओनर के ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर नहीं आना. अंडरस्टैंडिंग? आई कैन गिव यू एग्जांपल. सपोज ओनर एक्स इज सिटिंग, सोल प्रोप्राइटर है बेचारा, मस्त दुकान में बैठा, ग्राहक आ रहे, इज मैनेजिंग हिज बिजनेस, डूइंग हिज बिजनेस बाय वाचिंग सम रील्स एंड ऑल, ही इज नाइस, ही इज एंजॉयिंग हिज बिजनेस. अब घर से फोन आया, घर से क्या फोन आया, हिज वाइफ्स कॉलिंग हिम एंड सेइंग हिम बाय कमिंग यू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स. ठीक है, ओनर बोला ओके, आई विल ब्रिंग वेजिटेबल्स. शी टोल्ड विल बी कुकिंग some pav bhaji today and we'll be eating, so bring so and so vegetables and pav. Owner is like ठीक है, I will be coming and bringing. But owner जाते जाते गले में से पैसे लेके चले आता, बिजनेस के गले में से 20 रुपए लेके चले आता. अंडरस्टैंडिंग? 20 रुपए, 200 फॉर एग्जाम्पल, और some amount whatever it required he take from the business, whatever we say, मेरे से गले में से पैसे लेके चले आता, take the toll. Now you say me, जो भी खर्चा तो हुआ,
किसका खर्चा है? ओनर का, बिजनेस का? ये खर्चा है बट किसका है? ओनर का या बिजनेस का? ये खर्चा ओनर का है। दैट वॉट एवर ही इज डूइंग इज पर्सनल ट्रांजेक्शन। भाई उनकी वाइफ बोली बिजनेस कुछ उसका रिलेटेड नहीं है उसमें। भैया बिजनेस तो इसके कारण नहीं चाहे ना तो रिलेटेड बनता। नो नो नो, आई एम सेइंग वंस अगेन, ओनर सिर्फ इसको हैप्पी बर्थडे बोल के इसका जन्म कर दिया कैपिटल ले दे के, जैसा मैनेज करा वैसे रिटर्न लेता। सो वॉट एवर पर्सनल ट्रांजेक्शन ओनर करता दैट शुड नॉट बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ओनर के ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में अफेक्ट नहीं करना। तो जो भी उन्होंने 200-300 जो भी इज मेकिंग एक्सपेंस फॉर इज वेजिटेबल्स एंड वो उसके एक्सपेंसेस पे काउंट होते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस में काउंट नहीं होते। क्लियर? बट हाउ बिजनेस विल मेंटेन ट्रैक भैया? वो कभी भी आता कभी भी लेके चले आता, मन मर्जी कभी भी उसे गले जो पैसे रहते गले डाल देता है, कभी भी गले में से लेके जाते किसको भी दे देता। उसके भाई आए उसका चिंटू चिंटी जो भी उसके आते फेवरेट छोटे छोटे बच्चे, ये ले 5 रुपए 2 रुपए बोल के दे देता। या कभी कभी क्या बोलते ऐसा वाइफ फोन करी तो तरकारी लेके चले आता। सो हाउ टू मेंटेन दिस ट्रांजेक्शन विद ओनर्स? तो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज, हाँ भाई इट्स फाइन, ओनर के साथ बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, विल मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, विल मेंटेन सेपरेट कॉल capital account, we maintain separately called capital account, and also we maintain something called drawings account. समझ में आ रहा? So these two accounts are purely for owner. ये दो अकाउंट है are only for the purpose of owner. वो कभी भी लाया तो कैपिटल में जाता, वो कभी भी लेके गया तो ड्राइंग में जाता। अंडरस्टैंडिंग गाइस? So these two accounts capital and drawings are only maintained for maintaining the record of transaction for only ओनर ट्रांजैक्शन, दैट टू बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन। और ओनर को पर्सनल ट्रांजैक्शन करा ना वो अपने बुक्स में आते ही नहीं। अब इन आवर एग्जांपल is taking some amount for his vegetable and all, what we'll do as a business accountant, we'll like business में से पैसा लेके गए, so we'll be hitting to the drawing account, we will be hitting or passing entry for the drawing account, or we will be giving reverse effect on capital account. Understanding guys? So business entity concept says owner transaction should be treated separately, it should not have any effect on the business transaction. कल के दिन we are doing accounting for business to get what? Remember the objective to get the financial performance and position. performance में profit and loss आता, profit and loss कैसे आता? expense and income से आता। ओनर के expenses books में डाले तो correct profit आता? No, right? So that's the reason we should get to get the correct performance, you should have only business expenses and losses. That's the reason we should treat owner expenses and losses strictly from the business expenses and losses. So accountant should have this in his mind कि ये अकाउंटेंट जो भी कर रहा ना ये उसके लिए ये पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से इसमें नहीं आना, सॉरी ओनर ट्रांजैक्शन है इसमें नहीं आना, बिजनेस ट्रांजैक्शन है इसी में आना। अंडरस्टैंडिंग? So this concept says owner transaction should be treated separately, and whatever he bring to the business, capital account is there, whatever he take out from the business, ड्राइंग्स अकाउंट है। कभी कभी भैया सपोज उसकी वाइफ फोन करके बोले आज आते आते क्या बोलते हैं 1 किलो नमक लेके आओ, वी नीड एट होम 1 kg साल्ट, उसके वाइफ लेने आओ बोले लाइक मेरे दुकान में चक्का को बाहर से खरीदो बोल के रैक में से नमक के पैकेट लेके घर को चले आता। विल डू दिस राइट? सो दिस इज व्हाट बिजनेस के लिए क्या ये ट्रांजैक्शन है बिकॉज सेल हुआ, बट ओनर लेके गया पैसे दिया देता हूँ पैसे नहीं देता, दैट अमाउंट विल ट्रीट दैट इक्विवेलेंट अमाउंट विल ट्रीट इट एज अ ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट और ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अंडरस्टैंडिंग? सो वो पैसे लेके जान दो, बिजनेस का कुछ भी लेके जान दो, गुड्स लेके जान दो। सपोज बिजनेस का टेबल था फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस का असेट था टेबल जो अपन डेली काउंटर पर, वो क्या करा वो टेबल या एक स्टूल थी फॉर एग्जाम्पल, एक चेयर थे 5 चेयर्स थे बिजनेस में, एक चेयर वो घर को लेके चले गए। We treat that he is drawing on now one asset. जब लाया we treat a capital, जब लेके जा रहा एक asset लेके चले गया, एक goods लेके चले गया या पैसे लेके चले गया। So जो भी लेके जा रहा है we treat as a drawing, और जो भी लेके आ रहा है we treat as a capital in form of cash, asset or goods whatever it may be. Understanding? So business entity concept says we have to treat owner transaction separately from business transaction, because to get
correct or true and fair financial performance and position, only business transaction should be recorded in books of accounts of the business. ये अकाउंटेंट को मेक श्योर करना पड़ता है कि हम कभी भी ओनर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अपने बुक्स में नहीं दे रहे. ओनर के परसेंट, सपोज ओनर इनकम टैक्स पे करने के लिए आपने पैसे यूज करा, उसका इनकम है, उसका टैक्स है, बिजनेस के अंदर क्यों आता? अंडरस्टैंडिंग दैट द रीजन वी हैव टू मेंटेन दिस सेपरेशन. एक थिक लाइन की एक, दिस इज वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओनर ट्रांजेक्शन and business transaction. We have to maintain this difference and record accordingly. Hope I'm making it clear what is business entity concept. Clear? Now we'll run through the material once. I will go you with, we'll discuss one by one concept with this all discussion detailedly and having some examples wherever we can make it possible. See, entity concept, business concept and business entity concept is one and the same. It says entity concept states that business enterprises is separate identity apart from its owner. उसका खुद का एक वजूद है. For example, now even though I am the founder of the Kalpan Academy, I am separate and Kalpan Academy is separate. Even though I am founder, I can't say हम दोनों सेम ही है. नो, वो दैट सेपरेट. मेरे ट्रांजेक्शन अलग करना, उस ट्यूशन एकेडमी के ट्रांजेक्शन अलग से रहना. टू गेट financial performance and position of academy. Understanding? So we have to get the separate identity. An accountant here, accountant, you know, the one who is doing accounting, accountant should treat business as a distinct from its owner. तो ये ओनर अकाउंटेंट के लिए कॉन्सेप्ट है. क्या बोल रहा है ये कॉन्सेप्ट और कंडीशन टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंटेंट? ये क्या बोल रहा है? ये ऐसी कंडीशन दे रहा है कि तुम ये दोनों को सेपरेटली सोचो, सेपरेटली मानो, इसके ट्रांजेक्शन इसी में रिकॉर्ड करो. और तुम किसके अकाउंटेंट हो? बिजनेस के. उसके नहीं, उसके ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड मत करो. अंडरस्टैंडिंग? बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओनर ट्रांजेक्शन आर इन हिज पर्सनल. उन्होंने अगर अकाउंट मेंटेन कर रहा ना, उसका उन्होंने देख लेता कैसा कर लेना उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन. अंडरस्टैंडिंग? देयर अकाउंटेंट फॉर बिजनेस, सो मेंटेन बिजनेस के ट्रांजेक्शन इन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्लियर गाइस? Here, this concept help in keeping business affair free from the influence of personal affairs of owner. तो उसके पर्सनल अफेयर्स या पर्सनल ट्रांजेक्शन से बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना. उसका इम्पैक्ट जीरो नहीं रहा. इम्पैक्ट शुड बी नील. किसका इम्पैक्ट नहीं रहना? ओनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करना. क्लियर है? दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. ऐसा छोटा मोटा कंपनी में नेचर हर जगह ये कॉन्सेप्ट आता. दिस आर बेसिक, आई एम सेइंग, बेसिक कंडीशन. हर फॉर्म ऑफ बिजनेस में दिस इज कंपल्सरी टू बी फॉलोड. ऑल द कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, all these level 12 concepts whatever are there, these all concepts apply to all the organizations. Clear? Whether sole proprietor, partnership or corporate entities like company. Clear? The entity concept helps to ascertain how much amount of money is due to the owner in form of his capital and share of profit earned. तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट मेंटेन करने से बिजनेस भी स्ट्रिक्ट बोलता. तो पैसा दिया ना, तुम्हें अच्छा चला, मैं तेरे को रिटर्न देता हूँ, और तो जैसा चला है वैसे रिटर्न तेरा. क्लियर? सो दिस कॉन्सेप्ट गिविंग, making that clear difference की you had given the amount, I am maintaining that separately as capital. तो जैसे लेके जा रहा I am maintaining separately as drawing. और जैसे जैसे मेरे को चला रहा उसके साथ देखो हम दोनों में ये रिलेशन है. लाया कैपिटल में गया ड्राइंग में लेके चले आता. जैसे जैसे चलाया उसके हिसाब से मैं तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस साल टू साल देते जाता. और तू कुछ भी परसेंट ट्रांजेक्शन करा वो मेरे बुक्स में इम्पैक्ट नहीं करता. Understanding guys, this is how this concept will help us to maintain this differentiation and it's very important because अगर मिक्स करना चालू कर दिए, इसका करेक्ट प्रॉफिट आता, फिर करेक्ट लॉस आता, फिर बिजनेस का करेक्ट डिसीजन कैसे ले सकते? अंडरस्टैंडिंग? यू कांट टेक करेक्ट डिसीजंस. इन्वेस्ट करना नहीं करना या लोन लेना ना लेना लेंडर के लिए वॉट एवर यूजर्स आर देयर, करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते बिकॉज ये इन्फ्लुएंस है ओनर के ट्रांजेक्शन का. अंडरस्टैंडिंग? ऑल्सो हेल्प टू परफॉर्म अकाउंटिंग from a point of view of business and not of the owner. Accountant किसके हो? तो बिजनेस के ओनर के. Make this clarity, have this clarity. You're accountant of business or the you're accountant of the business. Even though owner अपॉइंट करता अपने को, यस ओनर विल अपॉइंट नो अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट को. वो अपॉइंट करा बट किसके लिए अपॉइंट करा? बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए. उन्होंने अपॉइंट करा बोल के अपन उससे परसेंट ट्रांजेक्शन इधर नहीं डाल नहीं सकते. To get the correct performance, you should only have expenses or incomes of business transactions in the business books of accounts. Clear guys? भले वो अपॉइंट करा तो अपन we can't violate our conditions, right?
If you violate it, we will have our own consequences there. Clear? So entity concept means that enterprises is liable to the owner for capital investment. Correct? Now you will understand the point. See here. Enterprises is liable. तो businesses are actually like तुम्हें को वापस दिया ना, धंधा चला, जैसा चला है वैसे रिटर्न दे तुम, और मरते टाइम पे तो अभी स्टार्टिंग में जो मेरे को वापस अभी कैपिटल के फॉर्म में दिया, व्हेन आई एम डाइंग, तो जैसा मेरे को मेंटेन करो उस हिसाब से भी रिटर्न भी कर देता हूँ मैं वापस। लॉस है तो ये घटते जाता तो कैपिटल, प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट तो लेके जा, कैपिटल वैसे ही रहता, जब मैं मर रहा मैं तेरे को रिटर्न। तो बिजनेस इज लाइक मैं तेरा एहसान फरामोश नहीं हूँ, तो मेरे को पैसा दिया, धंधा स्टार्ट हुआ, ऐसा जैसा चलाया वैसा वैसा तेरे को मिल रहा, मरते टाइम पे जो भी कैपिटल बचा मैं तेरे को देता हूँ, मेरा नहीं है वो, मेरा हक ही नहीं है उस पर। दैट द रीजन बिजनेस इज नॉट हैविंग, not making itself like I am the owner of the capital. They are like capital is always liability for us because उसका है, तो जैसे चला रहा उसको देना है अपने को एंड में। तो बिजनेस वो माइंडसेट में जी रहा, तो समझ में आ रहा। तो बिजनेस लाइक मैं कैपिटल को अलग ही मानता हूँ, मेरा एसेट ही नहीं है वो। क्लियर गाइस? दैट द रीजन वी विल शो कैपिटल इनटू लायबिलिटीज, नॉट इनटू असेट्स. This is the only concept which is giving you the reason for showing capital as a liability, because business continuity concept says owner के transactions अलग रखो और owner को जो भी आया और जो भी गया, we have a capital and drawing account, और business is like जो जैसा मेरे को चला वैसे चल जाता, और at the winding up time जैसे मेरे को बंद कर रहा, जो बचा सब तेरा ही चाहिए. That the reason I am not keeping in my pocket, जो भी बचा तेरे को मिलता. That's the reason I am maintaining this separate account and maintaining it as a liability, because I am not the owner at the end. You are the only who will take. Clear guys? So this is the biggest reason to show capital into liability. Just we learn capital liability में डालना है, बस ऊपर डाल देना, बैलेंस शीट में कैपिटल लिख दो अमाउंट. Reason is this. Understanding guys? So we have the example here, like capital 7 लाख लाया सी, Mr. X started business investing 7 lakh which he purchased machine for 5 लाख. 7 लाख पैसा लाया, उसमें से 5 लाख मशीन का मेंटेन बैलेंस 2 लाख कैश में रखता. ऑब्वियस है, कैपिटल देखो 7 लाख लाया, 5 लाख की मशीन और 2 लाख कैश में रहता. हिसाब क्लियर है ना? हिसाब क्लियर है. 7 लाख पैसे में लाया, वो 7 लाख. अब इसको मैं इफ आई सी मेंटेन दी क्या बोलते हैं ये ट्रांजैक्शन का, इफ आई मेंटेन दी रिकॉर्ड्स, गिव मी अ मिनट. If I maintain the record ये transaction के, yeah, if I maintain the record, when you see the balance sheet now, so here we'll have this capital for 7 lakh, and here we'll be having machine of 5 lakh, and here we'll be having cash of 2 lakh. So this will get tallied. Clear? तो बिजनेस एंडी कॉन्सेप्ट के कारण क्या हो रहा है, देखो बैलेंस शीट कैसे मेंटेन हो रही. तो 7 लाख दिया ना भाई, ये 7 लाख हम तेरे को वापस करते. अब वो 7 लाख तू दे दिया, हम तेरे कन से उधार ले जैसा है, विल रिटर्न एट द वाइंडिंग अप. अब हम ये 7 लाख कुछ भी कर सकते हैं धंधा चलाने के लिए. धंधा चलाने के लिए मेरे को मशीन होना, 5 लाख की मशीन लाया मैं और 2 लाख गले में रख लिया इसी. तो ये 7 लाख तू दिया, हम इसको ऐसे में इन्वेस्ट करें. सो व्हेन यू सी दिस साइड, बेसिकली दिस साइड विल बी बैलेंस शीट के अंदर, दिस साइड जो अपना ये लायबिलिटी साइड एंड कैपिटल साइड है ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट यू नो सोर्स ऑफ फंड. दिस इज एक्चुअली सोर्स ऑफ फंड. हम पैसा कहाँ कहाँ से उठाए ये साइड बताता बिजनेस का. बिजनेस के बैलेंस शीट के अंदर दिस विल शो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग अ फंड, कैपिटल, या देयर कैन बी लोन, देयर कैन बी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. दिस ऑल आर व्हाट, हाउ पैसा हम कहाँ से ला रहे, समझ में आ रहा. और दिस साइड गेस करो ये क्या बताता. दिस साइड विल शो एप्लीकेशन ऑफ फंड. तो यहाँ पे पैसा कहाँ से ला रहे और यहाँ पे पैसा कहाँ कहाँ लगा रहे, एप्लीकेशन ऑफ दोस फंड. हाँ, मशीन में 5 लाख लगा, इधर 2 लाख लगा, उधर 3 लाख लगा, और इतना कैश घूम फिरा के जितना लाए और जितना अप्लाई करे शुड बी इक्वल. ऑब्वियसली राइट, जितना लाए उससे ज़्यादा अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो जितना लाए उतना ही अप्लाई कर सकते हैं. और जो अप्लाई नहीं करे एज अ फॉर्म ऑफ कैश पड़े सो रहता.
Understanding, guys? So in this way we are able to get the picture separation from owner. So this will show as liability now, because ये हम पैसा लाए और हम अप्लाई कर लिए हमारे हिसाब से. When you see ना example also, and we see our example also now. Yeah, this example what is said though, this means that the enterprises owes Mr. X 7 lakh. तो enterprises is owing to Mr. X 7 lakh. Mr. X 7 लाख दिया, तो business is like हम तेरे को ये तेरा एहसान फरामोश ने हम तेरे को ये देते, we are owing you. Understanding? Now if Mr. X spend 5,000 to meet family expenses from the business fund, ये गधे को देखो, family expenses from the business fund कितने 5,000 ले रहा, then it should not be taken as business expense, should not be taken as business expense and could be charged to his कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट को घटा देते अपन, 5,000 माइनस कर देते, 7 लाख लाया था. अरे भाई तो 5,000 लेके गया ना बीच में, तो एक्चुअली तो कितना लाया, 6,95,000. 5,000 लाया नहीं समझते. इफ आई ड्रॉ द बैलेंस शीट आफ्टर दैट, नाउ गेस करो बैलेंस शीट कैसी आती. If I draw the balance sheet after that, our balance sheet will be like this. यहाँ पे कितना रहता, 69, sorry not 69, it will be 6.95, correct. It will be 6.95, and here cash will get reduced, right? कैश रिड्यूस होता ना, 5,000 लेके चले गया, 2 लाख में से 5,000 गए तो कितने रहते गाइस, इट विल बी 1.95. then total again 6.95, 5 plus 1.95, 6.95. अंडरस्टैंडिंग? सो इस वे से वॉट एवर ही गिव्स अपन अप्लाई करते, और वही नहीं कोई भी देते, विल अप्लाई सोर्स ऑफ फंड से, विल अप्लाई इन आवर बिजनेस, एंड एट द एंड बोथ विल बी इक्वल. क्लियर गाइस? So this was your what, business entity concept. Clear? So following will be the reversal now. See here, ऐसा रहता है, फिर cash will become 195, cash will become 195 and his capital will become 695. At the end both will be equal. Clear this concept, guys? Now we can go to next concept. Yeah, now we can move to next, that is our many measurement concept. Yeah, now we can move to our next concept, that is our many measurement concept. What this concept says, now from business unity concept you got to know what to record. You got to know what to record, only those transactions which are related to business, that only should be recorded. ओनर ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करना. तो ये बिजनेस यूनिटी कॉन्सेप्ट से मालूम हो गया. बट मनी मेजरमेंट क्या बोलता, चलो वेरीफाई, यू विल रिकॉर्ड. कैसे रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, अंडरस्टैंडिंग? बिजनेस यूनिटी कॉन्सेप्ट बोल दिया है कि क्या रिकॉर्ड करना, क्या रिकॉर्ड नहीं करना. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता, किस पे रिकॉर्ड करना. यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली इन मनी, ओनली इन मनी. सो यू हैव टू मेजर योर ट्रांजेक्शन इनटू मनीज. मनी का यूनिट, मनी मतलब करेंसी. अंडरस्टैंडिंग? सो देयर विल बी, एवरी कंट्री की ओन करेंसी रहती है, एवरी कंट्री की खुद की करेंसी रहती है. जैसे कि फॉर इंडिया वी आर हैविंग रुपीज. सो इन दैट मनी, in that money we have to measure our transaction and we have to record. In that money only we have to measure our transaction and we have to record. Understanding? So certain transaction which are able to measure into the money only, that transaction should be get recorded. Now catch our discussion. Remember, we remembered the meaning of the accounting, where we told we'll do recording, classifying, summarizing of all in a significant manner of transaction event which has financial character. Why we told financial character? This is the reason, because there is a concept is saying you measure the transaction only in money, that means which has only financial character. And this is the reason, one, there is a limitation also, like we are not able to record our loyalty and the skills of the employee. Why we can't measure that into money? कितना skill है, 1 crore 2 crore, can we say that?
नो. अंडरस्टैंड, कितने लॉयल है तुम्हारे कस्टमर? बिलियंस, बिलियंस में लॉयल है. वी कांट मेजर देम इनटू मनी. अंडरस्टैंडिंग? So it's not sounding good also. That's the reason that is sitting into liability limitations. Actually, that should be not have a limitation because you are following this concept. But ये इसको follow करते करते we are not able to do that. That's the reason that is into limitation. Now hope you got the clarity why that is into limitation. Now this concept is whatever transaction you are recording, that should be recorded it only money or one more word is money or money's worth. बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? money और money's worth. तो अगर वो मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मनी में नहीं है, अगर ट्रांजेक्शन इज नॉट इन मनी और इन रुपीज, वॉट एवर करेंसी यू आर इन योर कंट्री, बट यू मेक श्योर यू आर इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू मनी. इफ इट इज पॉसिबल देन यू कैन रिकॉर्ड. टैलेंट स्किल को भले वी वांट टू रिकॉर्ड, वी कांट रिकॉर्ड बिकॉज वी कांट कन्वर्ट, पॉसिबल ही नहीं है. बट ट्रांजेक्शन बिजनेस के है, बट वो मनी में नहीं रहते, स्टिल वी रिकॉर्ड बिकॉज मनी और मनीज वर्थ. मनीज वर्थ मतलब वी आर एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू इन मनी, count that into money, भले वो मनी में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यू परचेज अ फैन, पे अटेंशन गाइस. फॉर एग्जाम्पल यू परचेज अ फैन. परचेजिंग अ फैन इज व्हाट? ट्रांजैक्शन. परचेजिंग अ फैन इज अ transaction. Purchasing a fan is a transaction which is into money. We given 1500 for a fan, which is directly into the money. Clear guys? This 1500 which is directly in the terms of money, rupees 1500 we can record, no problem. Now yeah, so this transaction which is into directly into money because we are able to get the directly currency money value here. We purchase a fan for 1500, correct? This is directly able to get into the money. But now focus on this transaction. Purchase fan, very good. Purchase fan in return of old fan. In return of old fan. Understanding? Now, do we record this transaction or not? पैसे में there is no flow of cash. एक फैन था, वो फैन दे दिए, नया फैन लेके आए. हाँ, नाउ यू अज्यूम भैया पुराना देके नया देके आया, ऐसा कौन है? हमको भी बोलो, हम भी ले लेते. यू अज्यूम फॉर द एग्जांपल. अच्छा भाई, रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं है. ओके, यू कैन टेक दिस वन नाउ. इनटू आवर एकेडमी there is my friend called Pankaj. ठीक है? He gifted me fan. He gifted me fan. Now you say, do I should record this or not? He gifted me. गिफ्ट तो दे सकता ना भाई, दोस्त है, ट्यूशन अच्छे चला रहा बोल के फैन दिया मेरे को, लगा बोल के ना. ऐसे नहीं कि मेरे फैन नहीं थे. ही जस्ट गिवन, मेरे तरफ से भी फैन. चलो एसी दिया, बड़ा आदमी है, एसी दिया, व्हाट्स लेवे. डू दिस should be recorded in my books or not? पैसे में तो नहीं, but recording should be there or not? Yes, this will get recorded. For your kind information, this will get recorded. भैया ये कैसे रिकॉर्ड करते? इसमें तो है ही नहीं वैल्यू कुछ भी. This will get recorded now. How? We'll discuss. Transaction whichever are capable to measure into the money or money's worth. और मनीष वर्थ. ये एसी या फैन दे दिया, बट अगर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करा होता क्या वो सोचो पहले. अगर इफ आई एम नॉट रिकॉर्डिंग, डू आई हैव अ ट्रैक ऑफ करेक्ट असेट? डू माई ट्यूशन is having now, because I am having 4 to 5 fans already. He given one more fan which is total into 8 fans. Actually 8 fans है फिजिकली अभी यहाँ पे, बट मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा बुक्स में. मेरे बैलेंस शीट में कितने फैंस की वैल्यू दिखती? 7 फैन की वैल्यू दिखती. देन माय फाइनेंशियल पोजीशन इज करेक्ट? नो, एक्चुअली इट इज 8. रिकॉर्ड नहीं करो तो ये प्रॉब्लम. चलो भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेरी गुड, रिकॉर्ड कर रहे, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहे, वैल्यू
सात फैन की वैल्यू है, ये 8th फैन जो भी लास्ट फैन है इसकी वैल्यू. नाउ हियर यू रिकॉर्ड बिकॉज वी आर हियर नॉट ओनली टू see whether we should record or not, right? Financial performance and position say we are able to take decisions, remember that. तो करेक्ट है ना वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, उधर कुछ भी गड़बड़ नहीं होना, तो करेक्ट एसेट बताना ना करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए. सो वी रिकॉर्ड दिस 8th फैन एट सम रीजनेबल वैल्यू, और आई एम विल टेक द करेक्ट, आज गिफ्ट दिया, आज की मार्केट वैल्यू क्या विल रिकॉर्ड, और आई विल रिकॉर्ड इट नॉमिनल वैल्यू 1 रुपये 2 रुपये जो भी डाल के, बट आई विल रिकॉर्ड बिकॉज असेट तो करेक्ट दिखना मेरी बुक्स में. आई विल रिकॉर्ड विद 0 बिकॉज आई शुड हैव माई कंट्रोल ऑन माई एसेट्स. कल के दिन कोई भी एक फैन चोरी होके चले गया, वेर इज हाउ विल गेट टू नो कुछ हुआ नहीं हुआ. ठीक है, यू दिस इज वेरी स्मॉल वॉल्यूम. व्हेन इट कम टू लार्ज वॉल्यूम, इन्वेंट्री के केस में इसको क्या बोलते हैं, नॉट ओनली इन्वेंट्री, इन बिग लेवल्स कंपनीज के अंदर कोई ऐसे आके डोनेट करते गए लैंड्स एंड ऑल, फ्री में बोल के रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बाहर के बाहर ये लैंड भेज दे रहे, आई विल हैव अ ट्रैक. पब्लिक का पैसा, पब्लिक अच्छा कर रही बोल के, इतना पैसे कर रहे बोल के डोनेशन आ रहा गवर्नमेंट से, यहाँ पे लोग जो भी अंदर के वो बेच के खा ले रहे. अंडरस्टैंडिंग? सो दैट द रीजन now you should have your broader view on this concept. This concept not only said to measure in the money but also in money's worth, you are able to convert it or not. Clear? And apart from this transaction not only limit with our transaction to domestic transaction. So these transactions actually are of two type: domestic, give me a second, domestic and international. International transactions we will record. Understanding? International transaction we will record. Domestic transaction for India will record in rupee. For domestic transaction we'll have foreign currency, dollar, euro, pounds, yen. So these all foreign currency. कैसे we will record? We should convert them into our currency, rupee currency, by exchange rates. Convert करो और record करो. Understanding guys? So you have your broader view. खाली पैसे में ही नहीं, non monetary है, but we are able to convert them. We will record if it is related to business transactions. And we not only record domestic transaction, we can also record इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. बट अपनी रिपोर्टिंग करेंसी रहती फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीस में बनते हैं ना, वो रुपीस की करेंसी में वी कन्वर्ट दिस ऑल ट्रांजेक्शन एंड विल रिकॉर्ड. क्लियर गाइस? नाउ यू कम टू पीडीएफ. What PDF says? See here now. Many measurement concepts. As per this concept, only those transactions which can be measured in terms of money are recorded. Transaction, even if they are affect the results of the business materially or not recorded, they are not convertible into money term. Loyalty and event skills, they are easily very much essential, affect the business, actually affecting the results of business. वो है बोल के result अच्छा आ रहा, but still we are not recording because we are not able to convert it into money terms. However, it concept it has own limitations. देखो, employee are the biggest organization, still we won't record. वो आपको already पढ़ ले क्या limitations, not included. Clear? Currency in रूलिंग कंट्री, रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं इसको. वी आर इन टू ना इंडिया, तो अगर अपनी रुपी विल बी दी रिपोर्टिंग करेंसी. तो अगर इफ यू आर हैविंग दी क्या बोलते हैं फॉरेन ट्रांजैक्शंस, देन वी हैव टू कन्वर्ट देम. ट्रांजैक्शन अकर्स अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ कंट्री. और यहाँ पे एग्जांपल दिया देखो, वी कैन टेक द एग्जांपल. सपोज बिजनेसमैन सेल गुड्स फॉर 50 लाख एट होम एंड आल्सो सेल गुड्स ऑफ 1 लाख यूरोस में, 50 लाख इंडियन करेंसी में, 1 लाख यूरो में. तो टोटल क्या बोलते रहे तुम्हारी सेल्स कितनी है बोले तो 50 लाख एट होम एंड 1 लाख इन यूरो. यू कांट से दैट दिस 1 लाख यूरो वी कन्वर्ट विद 71 एज एक्सचेंज रेट. सो टोटल कितना होता 71 lakhs होता वन. अंडरस्टैंडिंग? सो 1 यूरो इफ आई एम टेकिंग विद 71 lakhs, 71 rupees, 1 lakh will become 71 lakh. 1 euro is equal to 1 euro is equal to rupees 71. If 1 lakh euro, it will becoming 71 lakhs, right? So 71 lakhs sales plus 50 lakh sales will become 121 lakhs. So this is my final sale. So I will convert them and I will add to my financials. Clear guys? This is your many measurement concept. Clear? Very nice. Now we can move to our next concept, periodicity concept. What this concept says, give me a minute.
Yeah, what is periodicity concept? If you remember, I told you at the beginning, concepts QI. Why we got concept? Because there was problem into the industry और standardize करने के लिए we got this concept. Periodicity concept कहीं को आया मालूम? चलो, very nice. We are doing accounting एक लिए कर रहे to know financial performance and financial position. Correct. We get this financial performance and financial position. We are doing the accounting. कब खिलाना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन? 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, मरते टाइम पे, बिजनेस को बंद करते टाइम पे कब लाना? चलो भैया 50 साल 10 साल ज़्यादा हो गए, कम करो, कब तक कम करेंगे? वीकली शेल वी डू दिस, वीकली शेल वी गेट परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, और मंथली और अमावस्या पुन्नम अंडरस्टैंडिंग. सो to have one regular fixed time to get your performance and position, so that comparison is followed, everyone should follow same industry में standardized way आना. You got this concept, periodicity concept. कब करेंगे भाई? सब लोग एक टाइम फिक्स करो ना. So they told every year which is having a 12 month, which is having a 12 months, that will be your reporting period. But when you see this 12 months period, worldwide they are following calendar year. And we Indian economy, we are following financial year. अपने को क्या था मालूम? पहले से था कि you should be different. ऐसे नहीं. There is a reason to get this. Focus. So there were 12 months का period है ना. Worldwide they are following Jan to December calendar year, but we Indian, we are following April to March. We'll say this as financial year, they will say that as calendar year. So calendar year बोलते हैं. Clear? So we are following this 12 month is दोनों भी. But why we selected this April to March? कुछ reason होगा ना. ऐसे कैसा लेते अपन. So reason was, what I believe that reason is what I'm sharing you out of our books and exam. We were into agriculture initially, so we were actually agriculture based economy. So agriculture ka, when you see the timeline, we have these types of crops, rabi, kharif, 4-5 types of crops are there. Actually we are having 4 types of crop. So 4 types of crop का grow करके we have some process of agriculture, right? Plugging, so seed soaking, seed germination, फिर harvesting, फिर whatever packing करके market में जब जाता था वो फसल, right? So to get that these 4 types of crop are actually in each and every quarter. So अलग अलग quarter में आ रहे थे ये, because we have 12 महीने में 4 क्वार्टर रहेंगे ना. So that every 4 quarter 3 months में 4 quarters में we are getting this one season of crops. तो ये चारों के चारों क्रॉप का एक ही बार एक्चुअली काउंट होना बोलते हैं. फिर से Jan to December, तो वी वर कमिंग इनटू द मिडिल. एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि थोड़े क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग बीच में रहती थी, आधे उग के छोड़ दिए. That's the reason to complete the cultivation of all the 4 crops we are able to get into April to March. This reason what I learn, and actually practically ये देखे तो भी यही सही दिखा लिया टाइम पे. That's the reason we are into now. We selected April to March as a financial year out of book everything. But why we are not changing now? Not that easy to change. अभी suppose ऐसे आजकल बोल दिया या नोटिस आ रही कि change to calendar year. बहुत प्रॉब्लम होती इंडस्ट्री में. एवरीवेयर दे स्टार्ट डूइंग अकाउंटिंग. अभी तक अप्रैल टू मार्च चल रही हर जगह, हर एक की बुक्स में बैलेंस स्टेटमेंट सब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब मार्च के टाइम पे बन रहे. सडनली कैलेंडर ईयर कर दो लेना, शिफ्ट करने, इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक. दैट द रीजन स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग इट, बिकॉज़ नो हार्म इन कंटिन्यूइंग. क्लियर? सो व्हाई दिस कांसेप्ट केम? What was the problem? When to report? A fixed regular interval of time fix करना पड़ता था. So that every year we can follow this regular interval time. या तो फिर धंधा करना यही करते बैठना. अगर we follow monthly, weekly, daily, धंधा नहीं करते, ये बनाते बैठना पड़ता फिर. So to get that fixed regular interval of time, we came to periodicity concept. See, now this is also called concept to define a accounting period. This was actually accounting period. This is our accounting period now. What financial year is our accounting period? Next, as per going concern concept, ये पढ़ेंगे सामने छोड़ो. और बिजनेस एंटिटी हैज कॉजेस इनकन्वीनियंस टू मेजर परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय द एंटिटी इन ऑर्डरली कोर्स ऑफ बिजनेस. तो जैसे जैसे धंधा करते जाते उसका परफॉर्मेंस मेजर करना पड़ता ना, बट कब करेंगे मेजर? वो इनकन्वीनियंस बन रहा था. तो सी ईयर द टेक्सटाइल मिल लास्ट फॉर 100 ईयर, फॉर एग्जाम्पल 100 साल चली वो मिल.
It is not desirable to measure its performance as well as performance only at the end of the life. 100 साल चला के 100 साल के बाद you'll get to know क्या performance and pressure. चलो 100 साल के बाद मालूम पड़ा कि हम losses करें and you got to know कि धंधा करना वेस्ट था, 100 साल वेस्ट करे अपन. Is that fruitful? Understanding that the reason generally 1 year period is taken up for performance measurement and appraisal of financial position. However, it may be of 6 months, 9 months or 15 months as well. ये कब है? See, we have reporting in this is for users. 12 महीने users के लिए है. but internally management को हो ना, आज के आज एक हफ्ते का भी बना के देख सकते, 3 महीने का बना के देख सकते. फौज टीम उतनी रखो, फौज उतनी रखो, वो बना देते. डिपेंड ऑन योर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. 6 महीने का. नो, वी हैव क्वार्टरली रिपोर्टिंग फॉर लिस्टेड एंटिटीज. वी हैव सेमी एनुअली रिपोर्टिंग फॉर लिस्टेड एंटिटीज. तो हम लोग बनाते बिकॉज वो ह्यूज लेवल पे है, लॉ है, उनके लिए बना लेते. बट जनरली फॉर बेसिक लेवल 12 मंथ का पीरियड. क्लियर? According to this concept, account should be prepared after every period and not at the end of the life of the entity. हर साल एक regular interval रहता, वो होती कि बनाओ. Not at the end of the life of the entity. Usually the period of one calendar. We generally follow 1st April of the year to 31st March of the immediate year as our accounting period. तो ऐसे करने से क्या हो रहा है? देखो, ऐसे करने से क्या हो रहा है? क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आने से क्या हो गया? कंपैरिजन पॉसिबल हुआ. कंपैरिजन इजी हो गया. एवरी ईयर वी कैन कंपेयर ना. 12 महीने अप्रैल टू मार्च टाइमलाइन फिक्स है. कंपैरिजन कभी भी इक्वल चीज में करना, राइट? 12 महीने का 8 महीने से कंपेयर करो तो सही रिजल्ट आता. सो 12 महीने फिक्स कंपेयर कर लेते गए तो सही रिजल्ट आता. सो कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड, यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. एक हर चीज को यूनिफॉर्म कर सके अपन इसके कारण. मैच, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी सेम आता है. मैच प्रोडक्ट रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस. 12 महीने का खर्चा 12 महीने की इनकम के साथ मैच कर सकते हैं. अगर अप्रैल टू मार्च के एक्सपेंसेस, जून टू जुलाई अलग पीरियड की इनकम लिए, यू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम इनकम. सो दिस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के कारण दिस 3 फैसिलिटीज आ गए, एडवांटेजेस आई कैन से. क्लियर गाइस? क्लियर है? नाउ वी कैन मूव टू वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट. Yeah, coming to accrual concept, this concept is very interesting and very important concept. So this concept is, you get the first basic what I say, basic funda of this concept. This accrual concept is applicable to only income and expenses. So see, every concept has its own advantage. It came for certain purpose, like business entity, to give the idea what is capital, drawing, owner transaction and all. When we come to next money measurement concept, money is worth, usko money and able to convert into whatever measure in table into money or money is worth, that only should be recorded. When it come to next concept, what we discussed was next concept, periodicity concept. This concept was saying you exact regular fix of time you have to maintain, so that comparison, evaluation, everything is able to possible with a specific period of time. That will be only your reporting time. That was the purpose of the concept. Now when we come to accrual concept, this concept is actually applicable to income and expenses. To whom it is applicable to only income and expense, or losses or gain, whatever income, expense or losses and gain, it is applicable. Now what it says, it's speaking for only income, expense, losses and gain, nothing else apart from that. तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोला? मालूम, इनकम, एक्सपेंस और या गेन और लॉसेस को कैसे रिकॉर्ड करना बोले तो ये कॉन्सेप्ट बोला, यू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस whenever they incurred and whenever we are not based on their payment. हिंदी में बोले तो ये लॉसेस को कब रिकॉर्ड करो? जब भी ये खर्चा हो गया तब रिकॉर्ड करो. खर्चा हुआ तो उसका आउटकम क्या होता? कैश पे करना पड़ता. करेक्ट? खर्चा मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश. तो खर्चा कभी कभी हो जाता बट आउटफ्लो नहीं होता. जैसे कि अभी किराया देना है 2 महीने का बट दिए नहीं, मतलब खर्चा तो हो गया बट कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ. यू से तुम्हारे बुक्स में आना नहीं आना. दैट वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो, ये कॉन्सेप्ट के कारण ही चाह रहा हूँ. दिस कॉन्सेप्ट सेज expenses and losses you record whenever they incurred. What uses incurred मतलब खर्चा हुआ, खर्चे के बेस पे लिखो, incurred के बेस पे लिखो, not on the basis of payment, पेमेंट के बेसिस पे मत लिखो, पेड के बेसिस पे मत लिखो. अंडरस्टैंडिंग? एंड इनकम एंड गेन कैसा बोल रहा है? यू रिकॉर्ड इनकम एंड गेन whenever you
अर्न नॉट व्हेन इट रिसीव्ड, मतलब इनकम और गेन कैसा है, जैसा कमाई हो गई, कमाई होती कि लिखो, वो कमाई पैसे में आई नहीं है, उसका उसका वेट मत करो। समझ में आ रहा? सो वन सेकंड व्हाट अक्रूवल कांसेप्ट सेज, अक्रूवल कांसेप्ट इज एप्लीकेबल टू ओनली इनकम एंड एक्सपेंस। नाउ देयर इज वन मोर कांसेप्ट, रियलाइजेशन कांसेप्ट। क्या दिस वर्ड वन मोर कांसेप्ट, रियलाइजेशन कांसेप्ट। रियलाइजेशन कांसेप्ट क्या है? वो भी इनकम एक्सपेंस की बात करता, वो भी लॉसेस गेन की बात करता, और दोनों सेम की बात कर रहे हैं। फोकस, इनकम एंड एक्सपेंसेस अक्रूवल जो बात कर रहा है दैट आर पास्ट, पास्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस हो गए सो की बात कर रहा है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आने वाले की बात करता। आई विल गिव यू क्लैरिटी वन सेकंड, बट व्हाट अक्रूवल कॉन्सेप्ट उसके स्कोप में क्या है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज डिस्कसिंग फॉर ऑलरेडी ट्रांजैक्शन जो हो गए, हैपन ट्रांजैक्शन, पास्ट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा, पास्ट इनकम एक्सपेंस की बात कर रहा, पास्ट गेन एंड लॉस की बात कर रहा, कौन? अक्रूवल। व्हेन इट कम टू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वो भी इनकम एक्सपेंस की बात करता, बट फ्यूचर के रिलेटेड है थोड़ा। विल डिस्कस दैट व्हेन इट कम्स। क्लियर? सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट सेज it's applicable to income and expense. Which income and expense? Past income and expense. It says income or expenses or gain. Sorry, expenses and losses. Expenses and losses should be recorded based on whenever it incurred, not on the payment basis. खर्चा हुआ तो लिख दो, पहले पेमेंट गया नहीं गया, ज़्यादा चले गया, उसको इज्जत मत दो, हुआ सो लिखो। Clear? When it come to income and gain, it says past income and gain should be recorded whenever you earn. कमाई हो गई तो लिखो, भले कमाई में अभी पैसा आया नहीं आया, सेकेंडरी। For example of expenses, our tuition is there, best example, 12 months we are there now at the some building. At that building you have to pay the rent, right? Bhale we stayed for 2 months, but we didn't pay the rent, we didn't pay the rent for 2 months, but we stayed। 2 महीना खर्चा हुआ नहीं हुआ, हो गया, पेमेंट हुआ नहीं हुआ, रिकॉर्ड करना नहीं करना, रिकॉर्ड करना। अंडरस्टैंडिंग? कहाँ रिकॉर्ड करना वो भी मैं नहीं करता। सपोज we are not paying the rent for last 2 months, that's your accounting के last 2 months, that's your क्या बोलते हैं, Feb and March, Feb and March का किराया नहीं दिए, we are into April, now we are making books for March, books closure है मार्च में, तो मार्च के अंदर देखे तो 12 महीने हुए, अप्रैल टू मार्च, बट किराया 10 महीने का ही पे हुआ, 2 महीने का पेमेंट नहीं हुआ। अंडरस्टैंडिंग? इफ यू सी द टाइमलाइन, इफ यू सी दिस टाइमलाइन, 12 मंथ्स के अंदर लास्ट 2 मंथ का पेमेंट नहीं हुआ, बाकी उनका पेमेंट हो गया, बट खर्चा तो पूरे 12 महीने का है, खर्चा तो पूरे 12 महीने का है। तो पीएनएल में यूसे तो पीएनएल क्या दे रहा है? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दे रहा? करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बता रहे, पूरा खर्चे डाले तो विल गेट इट, राइट? सो टू गेट इट ट्रू एंड फेयर योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यू हैव टू रिकॉर्ड, यू हैव टू शो फुल 12 मंथ्स का एक्सपेंस, फुल 12 मंथ का एक्सपेंस, irrespective whether you have to show full 12 months, irrespective of whether you had paid or not, irrespective of whether you had paid or not। जो पेड हुआ वो रेंट बोल के आता, जो पे नहीं हुआ वो आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के आता। दिस इज द रीजन वी हैड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बस 12 महीने का दिखाओ बोला अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बोलो 12 महीने का दिखना, भले पेमेंट करो ना करो, तो पेमेंट करे तो आ जाता, बट पेमेंट जो नहीं करे ना उसको अपन आउटस्टैंडिंग बोलकर एंट्री पास करके ऐड करके बताते कि ये 12 महीने का किराया है, बिकॉज 12 महीने का दिखाना पड़ता, भले पेमेंट करो या ना करो। अंडरस्टैंडिंग है दैट रीजन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो भी रहता है एडजस्टमेंट्स में दे आर गेटिंग एडेड। व्हाई इट इज गेटिंग एडेड? बिकॉज ऑफ द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्लियर? व्हेन इट कम टू इनकम एंड गेन्स, ये भी सेम बोले, इनकम एंड गेन्स व्हेनेवर यू अर्न रिकॉर्ड करो, पास्ट इनकम एंड गेन, पास्ट इनकम एंड गेन मतलब सेल हो गया, पैसे नहीं है उसका से, सेल हो गया लेके चले गया, बोला 4 दिन बाद देता हूँ, बट वेर इंटू अप्रैल, मार्च के 31 को लेके गया, 4 दिन बाद बोलते अप्रैल में 5 में पैसे देता, बट सेल तो अप्रैल में होगा, मार्च में हो गया, मार्च के अंदर आना ना, दैट आना, बिकॉज दिस अक्रूवल कॉन्सेप्ट से बेस्ड ऑन अर्निंग यू रिकॉर्ड, रिसीट नहीं हुआ यू रिकॉर्ड, बट दैट ओनली विल गेट करेक्ट सेल्स एंड करेक्ट इनकम, करेक्ट प्रॉफिट। क्लियर गाइस? So accrual concept is dealing with applicable to only past income and expenses, past gain or losses। So expense and losses past के जितने भी है based on the incurred and based on the incurred you have to record, not based on payment। When it come to incomes and gain, whatever you earn you record, past I'm saying you continuously past incomes को you earn you record, receipt के basis पे मत बैठो। Now I have to introduce you one more word। ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, इनकर और अर्न के बेसिस पे जो कर रहे, that is your mercantile system of accounting।
मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर तुम्हारी अकाउंटिंग पेड और रिसीट के बेसिस पे रहती थी ना, दैट इज योर व्हाट, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर गाइस? तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना होगा कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फंडामेंटल है, बिकॉज दिस इज बेसिक। बेसिक हर कोई फॉलो करना ही है, फंडामेंटल है। यू कांट गो टू कैश, बट है एक सिस्टम, थोड़े कैश फॉलो करने वाले कर लेते, बट 99% मेजॉरिटी विल गो विथ अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बिकॉज to get your correct profit or loss. Clear guys? So hope we are able to give you 4 concepts clearly. First we does business entity concept or entity concept, next money measurement concept, periodicity concept, now accrual concept. Clear? So now we can see the accrual concept from the PDF. Yeah, what this say, used and accrual concept, the effect of transaction on the mercantile basis. I told you the word mercantile basis of accounting, and financial statement prepared on the accrual basis. Inform user not only of past events involve the payment and receipt of cash, but also of obligations to pay cash in future. तो इससे क्या हो रहा, जो पे कर दिए वो तो लिख रहे, बट जो पे करना है अभी तक का, जो आना है, वो सब अपन यूजर्स को बता सक रहे बाय फॉलोइंग दिस अक्रूवल मीन। अक्रूवल मीन्स रिकॉग्नाइज ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट as they, if you see what, as they earn or incurred, and not as money is received or paid. This is the very important line for accrual concept. This line here guys. So as per accrual concept, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज योर प्रॉफिट। रेवेन्यू मीन्स जो अर्न करे और जो अर्न करना भी है, एक्सपेंस मीन्स जो इनकर करे और जो पे करना भी है। रेवेन्यू मीन्स जो अर्न करे और जो रिसीव करना भी है, एंड व्हेन इट कम टू एक्सपेंस जो पे करे और जो पे करना भी है, दैट विल गिव करेक्ट प्रॉफिट। क्लियर गाइस? सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑपोजिट टू दैट कैश बेसिस, विच सेज कैश रिसीव्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस कैश पेड। ये कैश के हिसाब से देखता एंड विल गेट प्रॉफिट। दिस इज योर कैश प्रॉफिट, दिस इज योर कैश प्रॉफिट, दिस इज दी बुक प्रॉफिट, जो तुम्हारे कैश भी है और थोड़ा नॉट जो अदर देन कैश का भी प्रॉफिट है बेस्ड ऑन अक्रूवल। क्लियर गाइस? सो दिस इज द एग्जांपल, इट सेज टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बुकिंग कुड बी डिफरेंट फ्रॉम कैश और रिसीट और पेमेंट। क्लियर? तो ये थोड़े एग्जांपल्स यू कैन गो थ्रू दैट। क्लियर? नाउ आई वांट टू गो इमीडिएटली टू रियलाइजेशन कांसेप्ट। विल कवर दैट्स ऑल इन मिडिल कांसेप्ट, डोंट वरी। रियलाइजेशन कांसेप्ट, what this concept says, as I was emphasizing, give me a minute. So when we come to realization concept, what it says, this realization concept is as just now I was saying, is applicable to see here future losses and gain, future losses and gain। मैं फ्यूचर लॉसेस एंड गेन की भी बात करता है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या बोल रहा है, फ्यूचर लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, फ्यूचर लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। फ्यूचर लॉस है ना, अभी लिख लो। फ्यूचर गेन मत लिखो, गेन नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, मत लिखो। बट फ्यूचर का लॉस लग रहा ना होता, बोल के आज ही लिख लो भैया। फ्यूचर लॉस मतलब क्या, मेरे को लग रहा 10 साल के बाद मेरे को लॉस आता, आज ही लिख लो। मेरे को लग रहा 5 साल के बाद मेरा बिजनेस लॉसेस में, आज ही लिख लो। इज नॉट सेइंग दैट, रिमेंबर दिस ईयर फ्यूचर गेन और लॉस हियर, फ्यूचर गेन और लॉस व्हाट, future gain or loss related to current item, related to current item of financial statement। financial statement में एक चीज बैठे सो है, लाइक डेटार्स, डेटार आज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैठे सो है, बट ये डेटार के रिलेटेड मेरे को लग रहा आज अभी लॉस नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर में लॉस होता, फ्यूचर में लॉस होता, एट द रीजन वी क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिकॉज मेरे को फ्यूचर का लॉस होता तो मैं अभी रेडी रह रहा हूँ उसके लिए। फ्यूचर में लॉस है बट रिलेटेड टू माई करेंट आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अंडरस्टैंडिंग? डेटा अभी करेंट है मेरा, उसके रिलेटेड मेरे को फ्यूचर में लॉस होता लग रहा। या फॉर एग्जांपल मेरे को करेंट कुछ एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंस मेरे को लग रहा फ्यूचर में नहीं करना पड़ता, दैट विल बी योर गेन। वैसी चीजें मत रिकॉर्ड करो। बट व्हेन इट कम टू लॉसेस कि अभी ये इनकम है करेंट, बट सामने लग रहा है इनकम मेरी कम हो जाती, देन उसका लॉस है, अभी से रिकॉर्ड करो। सो करेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहे हैं, जो अभी 31 मार्च के दिन या जो भी करेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहे, उसके रिलेटेड का लॉस अभी नहीं हुआ, बट मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि आज का जो भी है उसका रिलेटेड का लॉस आने वाला है 5-6 महीने में या 1 साल में। दैट लॉस यू रिकॉर्ड इट नाउ ओनली, मेंटेन प्रोविजन फॉर दैट, दैट रीजन मिल रहा प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट करने का दिस इज द ओनली रीजन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये एक ही अलाउ कर रहा हूँ।
इसके कारण ही कर रहे रिलेशन कॉन्सेप्ट. जो आई एम सेइंग दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज हर चीज इनसे आ रहा कॉन्सेप्ट. तो अपन वहाँ पे एड लेस कर देते हैं. रीजन व्हाई वी आर डूइंग these are the only the reasons. Clear? So relation concept discussing for dealing with future income and losses. It says future losses you record, but future losses का मतलब क्या? Which are actually losses related to item of current financial statement. Current financial statement के अंदर जो items बैठ रहे वो item जो it can be to P&L और बैलेंस शीट, वो आइटम के रिलेटेड मुझे लग रहा है सामने लॉस होने वाला है, मेरे डेटार्स कम होने वाले हैं, मेरे असेट्स की वैल्यू गिरने वाली है. सो दैट रिलेटेड फ्यूचर का इनके करंट फ्यूचर में लॉस है बोल के श्योर है तो अभी रिकॉर्ड कर लो. बट इनके करंट फ्यूचर में इनकम है बोल कर श्योर है मत रिकॉर्ड करो. इवन दो यू आर श्योर डोंट रिकॉर्ड. गेन को ये साफ माना करना कॉन्सेप्ट. फ्यूचर गेन को मत रिकॉर्ड करो तो रिकॉर्ड करे नहीं हुआ अननेसेसरी यूजर को ज्यादा प्रॉफिट दिखा बोल के गलत हो जाता ना. बट रिकॉर्ड नहीं क्या बोलते रिकॉर्ड नहीं करे हो गया वेरी गुड. गुड न्यूज तो कभी भी तो गुड न्यूज ही है अंडरस्टैंडिंग. बट बैड न्यूज की करेक्ट टाइमिंग रहना. सो व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर लॉसेस अभी से इनको ओनर को यूजर्स को मेक देम अवेयर कि ऐसा लॉस होने वाला है. हो गए बात बोले ना दे विल बी इन प्रॉब्लम. बिजनेस में इनटू इन प्रॉब्लम. तो अभी से यू गिव देम अलर्ट कि हमारा लॉस ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो गया वेरी गुड. वी आर ऑलरेडी नहीं हुआ वेरी गुड. वी कैन रिवर्स नाउ दिस. जो भी फ्यूचर लॉसेस में अपन सोच रहे थे रिवर्स कर लो. क्लियर गाइस कैसे रिवर्स करते क्या बनाते हैं. आई एम जस्ट गिविंग क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. सो नाउ when we compare two concept accrual and realization, this is the difference. accrual जो है ना पास्ट की बात कर रहा, रियलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ना फ्यूचर की बात कर रहा. एंड both are dealing with what? income and expense. clear है guys? both are dealing with income and expense. both are saying for income and expense, but एक पास्ट के लिए बोल रहा है फ्यूचर के लिए बोल रहा. पास्ट का क्या बोलता है एक्सपेंसेस को अक्रूवल बेसिस पे लिखो, ऑन एंड रिसीट के बेसिस पे लिखो, पेमेंट बेसिस पे मत लिखो, रिसीट बेसिस पे मत लिखो. रिलेशन क्या बोलता? फ्यूचर लॉसेस एंड गेन्स के बारे में बोलता. फ्यूचर लॉसेस अभी लिखो, गेन के बारे में मदर. फ्यूचर लॉसेस मतलब जो लॉस अभी रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल सिस्टम के कारण आ रहा. क्लियर गाइस? दिस वाज योर 5 कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, periodicity, accrual, realization. Clear?